A very good morning to everyone. Welcome to CGB Mentors, and in today's class we are going to discuss agriculture current affair from 1st April to 5th of April. Before starting our class, can you please confirm, is audio and video clear? So let's start. In today's current affair, we are going to discuss few of the important initiatives of Ministry of Food Processing and your Ministry of Animal Husbandry. Okay, so look here. The first one is about the food processing sector. Yes, a very good morning to everyone. Let's start. So the first one, like, we are having a food processing sector and government is promoting this sector as a sunrising sector till this year. Okay, thank you for confirming this. So let's move on with our class. So this food processing sector, in this food processing sector, we have a huge opportunity, okay, to grow at the in the export market as well and international market maybe, and it is very essential to reduce the post harvest losses which are very high in India. ठीक है, इन पोस्ट हार्वेस्ट को पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है इंडिया में, उनको कम करने के लिए दिस सेक्टर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस एंड इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो एज वेल. So we have to discuss till now what are the important initiatives in this sector and how much this sector has growth. So look here, Make in India push for food processing excellence. This was a scheme. This is a Make in India initiative under Ministry of Food Processing and ठीक है. एंड इन दिस पर्टिकुलर स्कीम जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इसका जो बजट है रिसेंटली इन 2024 टू 25 दिस वाज इंक्रीज्ड बाय 13.19%. ठीक है, पिछले सालों से इसका इस साल 24-25 में इसका जो बजट था दैट वाज इंक्रीज टू 30.19%. अब इस पर्टिकुलर सेक्टर्स का हम एक ओवरव्यू देखते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का कि व्हाट इज इट्स GVA, हाउ मच पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस. सो लुक हियर, its GVA was increased from 1.61 lakh crore in 2015. 2015 में इसकी GVA कितनी थी? 1.61 lakh crore, which was increased to 1.92 lakh crore in 2022. Okay, now average annual growth rate. So its average annual growth rate is 5.35%. ठीक है, since this last 8 years until 2022. Now, employment in 2024 was 17.73 lakh and till 21 it is your 20.68 lakh. ठीक है, इतने फार्मर्स, इतने पीपल इसमें एम्प्लॉयड है. नाउ देर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव अंडर दिस स्कीम टू प्रमोट अंडर दिस प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर टू फर्दर empower it and to further grow it. So first one is your PM किसान संपदा योजना, जो सबसे मेजर स्कीम है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसमें इन विच दे आर प्रमोटिंग food processing industries, your cold chain and supply chain. They are promoting supply chains as well, cold storage as well, and they are promoting your different food mega food parks, food clusters they are also promoting. So देखते हैं स्कीम में क्या है. In this is first of all this is an umbrella scheme. ठीक है, संपदा which is for agro marine processing development and agro processing clusters जो है इनको प्रमोट करना है. And what is the total allocation of this scheme? ये scheme जो है, first of all, it was launched in your May 2017 with a total allocation of 6,000 crore. ठीक है, अब इस scheme में जो है, they have increased the time period of the scheme till 31st March 2026 with the increased allocation of 4,600 crore. इस स्कीम को जो है फर्दर आपका 2026 तक और इंक्रीज कर दिया इसका टाइमलाइन, एंड दे हैव इंक्रीज्ड इट्स एलोकेशन एज वेल विद रुपीज 4,600 crore. ओके, सो व्हाट आर द स्कीम्स? ये तो हो गया इसका राइट अप कि भाई ये स्कीम 2017 में इसको लॉन्च किया गया था एंड दिस वाज लॉन्च्ड विद अ budget of 6,000 crore. Now
its allocation was further increased to 4600 crore and its timeline was also increased to March 31st 2026. Okay, now what are the schemes under this? इस scheme को तो हम promote कर रहे हैं, but इसके अंदर और because it's an umbrella scheme, इसके अंदर other आपकी schemes है. umbrella scheme कौन सी schemes होती है? जो एक major scheme हो and in which lot of other minor schemes are also there. Okay, so like in agriculture sector, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज देयर. तो कृषि विकास योजना भी क्या है? आपकी अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें फर्दर आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग इज देयर, योर सॉइल हेल्थ कार्ड इज देयर. तो इसी तरीके से ये भी आपकी क्या है? एक अम्ब्रेला स्कीम है. एंड व्हाट आर द अदर स्कीम्स अंडर दिस? इसमें और क्या स्कीम्स है? फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, दे आर प्रमोटिंग कोल्ड चेन एंड सप्लाई चेन एज वेल. सो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन हो एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो. मीन्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जिसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. लाइक मैंगो इज देयर. अब मैंगो से मुझे मैंगो प्यूरी बनानी है या फिर मैंगो पिकल बनाना है, दैट इज अ वैल्यू एडिशन. सो दे आर एस्टेब्लिशिंग cold supply chain, integrated cold supply chain as well as value addition sectors. Next, creation and expansion of food processing and preservation capacities. ठीक है, in the rural areas जो फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन यूनिट्स हैं उनको प्रमोट करना है फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरियाज. ठीक है, क्लस्टर्स बनाने. अब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर इन रूरल एरिया में है. सो दे वांट टू एस्टेब्लिश स्मॉल क्लस्टर्स एट द विलेज लेवल एज वेल, सो टू प्रमोट योर फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए, ताकि वेस्टेज जो है विलेज लेवल पर ही आपका कम से कम हो सके. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर. ठीक है, कंप्लीट एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर दे आर एस्टेब्लिशिंग. नाउ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. लाइक in your this food processing sector, क्वालिटी एश्योरेंस इज मस्ट है ना, कि भाई उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू क्या है, हर्बिसाइड रेसिड्यू क्या है, उसमें आपने कितने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, प्रिजर्वेटिव्स आपने क्या यूज किए, एंड देयर आर लॉट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिजर्व दीज फूड प्रोडक्ट्स. ओके, एंड हाइजीनिक कंडीशन. मे बी दैट प्रोडक्ट वॉज प्रोड्यूस, जो ये प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, मे बी दैट प्रोडक्ट वॉज प्रोड्यूस वॉज नॉट इन हाइजीनिक कंडीशन में नहीं. सो क्वालिटी अश्योरेंस इज वेरी मस्ट इन योर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जिसके लिए दे आर प्रमोटिंग योर क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. अब क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे तो क्या करेंगे वो? दे विल एस्टेब्लिश क्वालिटी एश्योरेंस लैब, कि भाई मेरे पास एक फूड प्रोडक्ट है, आई विल गो टू दैट लैब. अब मैंने प्रोसेसिंग को तो इंक्रीज कर दिया, आई हैव एस्टेब्लिश लॉट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स, बट आई हैव नॉट एस्टेब्लिश लैब. ठीक है, मैंने लैब्स को नहीं फॉर फूड प्रोडक्ट्स की प्रॉपर चेकिंग के लिए, प्रॉपर केमिकल प्रोफाइल को चेक करने के लिए मैंने लैब्स एस्टेब्लिश नहीं किए. सो व्हाट विल हैपन? there will be increase in negligence with the quality assurance. So lab implementation is also must. कि एक farmer है, एक person है जिसने अपनी processing unit लगाई, he will take his produce to the lab and to get a complete chemical profile कि भाई उसमें क्या क्या चीजें, so that उसको further आगे clearance मिल सके for export market and for selling in that market. So पहले क्या होता था, लोगों को एक जगह से like they have to send their sample from one state to the another. And these lab facilities are only in few of the state, like Bengaluru is there, your Mumbai is there, Delhi is there, Kolkata is there, but regional level पर नहीं available थे. तो the government is implementing and promoting these lab facilities at रूरल, नॉट जस्ट रूरल एरिया, टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है. एंड दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग दिस ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें. एंड दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग ऑपरेशन ग्रीन्स. ऑपरेशन ग्रीन में क्या होगा, आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है इस सेक्टर से कम हो. ठीक है, कार्बन एमिशन. नेक्स्ट, व्हाट आर द अचीवमेंट्स अंडर दिस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कि टिल नाउ अभी तक कितनी अचीवमेंट इस स्कीम के अंडर आपकी हो चुकी है. सो एज ऑफ फरवरी 28-25 देयर आर 1608 प्रोजेक्ट्स आर सैंक्शन. ठीक है, इतने प्रोजेक्ट्स आपके जो टोटल हैं वो सैंक्शन किए जा चुके हैं. एंड आउट ऑफ दिस 1608 प्रोजेक्ट्स 41 आर मेगा फूड पार्क and 394 are your cold chains, 75 agro processing clusters, 536 food processing unit, and your 61 creation of backward and forward linkage. Backward and forward linkages क्या होती हैं आपकी, like I am the middleman, I want to contact with the farmer, मैंने farmer के साथ contact किया and I have contacted with the food processing unit and the
एक्सपोर्टर एज वेल। तो ये क्या हुआ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज हो गई कि आपने फार्मर्स से कनेक्शन एस्टेब्लिश करके यू हैव एस्टेब्लिश्ड अ कनेक्शन टिल द एक्सपोर्टर्स एज वेल। ओके, कि आपने वहां से एक मीडिएटर का काम किया, यू हैव प्रोक्योर्ड द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर, देन आपने इंडस्ट्री को दिया, इंडस्ट्री से लेकर के आपने क्या कहते हैं एक एक्सपोर्टर को दिया या मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कराई। दिस इज योर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, सो दे आर प्रमोटिंग दीज एज वेल। सो दे हैव क्रिएटेड 61 creation of backward and forward linkages, 44 operation green projects are there, and till now 6198.76 crore is disbursed under this particular scheme. Okay, इतनी मनी जो है वो अभी तक इसमें डिस्बर्स की जा चुकी है। नेक्स्ट, अंडर दिस, for promotion of your food processing sector, we have another scheme, that is your production linked incentive scheme for food processing industry. ये scheme आपको पता है PLI scheme। इसमें क्या है, if I'll tell in brief कि we are promoting Make in India initiative, है ना, हम इसको promote करें in every sector, not just in food processing and agriculture sector, in every sector we are promoting this to reduce the export burden. अब इसमें क्या है, they want that companies कि if you exceed that particular limit, कि हमने आपके लिए एक limit set कर दी इस year में, like just एक कि 5 करोड़ रुपीस, कि आपने इतने करोड़ का प्रोडक्शन या इतने करोड़ का प्रॉफिट आपने जनरेट किया, इफ यू विल एक्सीड एंड रीच दिस लिमिट वी विल गिव यू सम इंसेंटिव, कि हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो इससे क्या है, दे विल जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं दे विल हेल्प इन, दे विल अचीव दैट टारगेट, वो आपका प्रमोट करेगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, है ना। एंड सो अब इसमें क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम में, दिस वाज अप्रूव्ड इन योर मार्च 2021। कब लॉन्च की गई थी ये, मार्च 2021 में, एंड विद आउटले ऑफ, कितना आउटले था जब इसको लॉन्च किया गया था, विद आउटले ऑफ 10,900 करोड़ रुपीज। एंड दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड फॉर योर 6 ईयर पीरियड के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया था, फ्रॉम 2021 टू 2026। ओके, so this was the timeline of this scheme, and they can ask you the question on that as well, na, ki what is the sunset clause of this PLI scheme. Okay, this scheme was launched with the allocation of how much money, so you have to learn this. Next, अब इसमें देखते हैं this particular schemes is having different component है, scheme में आपके different component है, category 1, category 2, या किस तरीके के प्रोड्यूस को या किस तरीके के प्रोडक्ट्स को इसके अंदर आपका प्रमोट किया गया। So look here, this particular scheme is for giving incentive to manufacturer for the four major food products। ठीक है, 4 major food products के लिए इसको इसके अंदर आपका इंसेंटिव दिया जाएगा। अब वो 4 मेजर फूड कैटेगरीज कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज योर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ योर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, है ना, जैसे आजकल आपके मिलेट बिस्किट्स आर देयर, मिलेट स्नैक्स आर देयर। सो this will improve and promote your millet sector as well, और farmers को भी benefit होगा, farmers जो है वो grow करने की कोशिश करेंगे millets को। Now processed fruit and vegetables, earlier we are having fruits में हमारी प्रोसेसिंग कहाँ तक थी, सिर्फ पिकल बना दिया, है ना, आपका मुरब्बा बना दिया, जैम बना दिया। सो वी आर एट दैट स्टेज चल की ना, हम सिर्फ इतनी ही प्रोसेसिंग करते थे फ्रूट्स की एंड वेजिटेबल्स की। नाउ दे आर ऑल्सो प्रोमोटिंग टू मेक प्यूरीज ऑफ दिस ना, प्यूरीज बनाओ आप इसके, लाइक canned fruit are there, canned vegetable are there. If you will go in the foreign countries like China and USA, you will find that they are having canned fruit, कि आपके जो फ्रूट्स हैं उनको कट किया, चॉप किया, एंड दे विल, फ्रूट्स जो है फ्रूट को आपका शुगर सॉल्यूशन में स्टोर करके रखते हैं ना, तो कटिंग की एंड चॉपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, दे जस्ट प्रोक्योर दैट एंड यूज दैट। सिमिलर विद द वेजिटेबल्स, they will store that canned fruits and vegetables आते हैं, तो वेजिटेबल्स को किस में स्टोर करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में। ब्राइन सॉल्यूशन पे आपका प्रिजर्वेशन पे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है नाबार्ड एग्जाम में। सो व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन इज बेसिकली अ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो है आपका दिस ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ योर वेजिटेबल्स स्पेसिफिकली। ठीक है, तो कभी भी ब्राइन सॉल्यूशन का नाम आए तो दैट विल बी यूज्ड फॉर योर प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, सो वेजिटेबल्स को उसमें आपका स्टोर करना है, एंड दैट कैन बी एक्सपोर्टेड टू दैट कैन बी एक्सपोर्टेड इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल, जहां पर इसकी डिमांड है। सो
if you are working in preservation of your fruit and vegetable, then also we will give you incentive. Next, मैरीन प्रोडक्ट्स एंड मोजरेला चीज, ये कैटेगरी 1 प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। आप मोजरेला चीज की प्रोसेसिंग इंक्रीज कीजिए और मैराइन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग इंक्रीज कीजिए, वी विल गिव यू इंसेंटिव ऑन दैट। एंड द फोर्थ वन इज योर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की भी प्रोसेसिंग पर हम आपको इंसेंटिव देंगे। नाउ अब जो ये इंसेंटिव मिलेगा, द थर्ड दिस विल बी इंसेंटिव, एंड द थर्ड कंपोनेंट रिलेटेड टू द सपोर्ट फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। जो इस स्कीम में एक और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो बेनिफिट मिलेगा, दैट इज फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एज वेल, एंड दैट इज फॉर योर अब्रॉड मार्केट, है ना। ये इसलिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, एंड दे आर हेल्पिंग फॉर दिस ब्रांडिंग and marketing. They want to promote the Indian food processing sector in the international sector. जैसे अभी हम मार्केट में जाते हैं प्रोडक्ट्स लेने, तो वी विल फाइंड कि देयर इज अ लेज प्रोडक्ट्स है वहां पर, आपके डोरिटोज है, दे आर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, है ना, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज है। सो सिमिलरली लाइक दैट वी वांट आवर प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ ऑफ दोज सुपर मार्केट इन योर अदर कंट्रीज एज वेल। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स की पहचान बनानी है, वी वांट टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमें मैच करना है, ठीक है। तो ये इसीलिए ही ये थर्ड कंपोनेंट है, इन विच दे आर प्रमोटिंग, दे आर हेल्पिंग फॉर द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इन अब्रॉड मार्केट। एज ऑफ टिल now as of February 28, 25, a total of 171 food processing companies have been approved under this PLI scheme. कितनी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर अभी तक बेनिफिट मिल चुकी है? Your 171 food processing companies को, and they have given the initiatives of 1155 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव उनको अभी तक मिल चुका, out of which 13.266 करोड़ has been डिसबर्स टू MSMEs, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं इस PLI स्कीम में, देवर योर MSMEs। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि PLI स्कीम के अंदर जो सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स मिले हैं वो कौन सी इंडस्ट्री को मिले हैं, कौन फूड प्रोसेसिंग में कौन से सेक्टर को मिले, तो दैट इज योर MSME। जो MSME वर्क कर रही हैं इन योर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, दे वर बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम, ओके। And under this food processing sector, by your 31st October 2024, it had generated approximately 2.89 lakh employment, okay. Next is your Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme. Okay, this is again your scheme. This scheme was launched in your 2020, June 2020 में ये आपकी launch की गई थी, for with your motto of vocal for लोकल, है ना, कि वी हैव टू बी वोकल फॉर आर लोकल प्रोडक्ट। हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है, हमें अपनी मार्केटिंग करनी है थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ, और वर्ड ऑफ माउथ से जितनी अच्छी मार्केटिंग होती है वो किसी भी चीज से इतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं होती है, ओके। सो दे हैव गिवन द मोटो फॉर दैट, वोकल फॉर लोकल, एंड एट दैट टाइम दे हैव अलोकेटेड ₹10,000 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2020 to 2025. Recently, this scheme was further extended to 25-26, and this was the first ever government scheme for micro food processing enterprises. ये पहली food processing scheme थी जिसने micro food processing enterprises को target किया था, जो बहुत छोटी से छोटी आपकी food processing units थी, जो specifically work करती थी at the rural level, उनको इसमें target किया गया, and they set the target कि that we will benefit approximately 2 lakh enterprises through this credit linked subsidy, ठीक है। हम उनको credit linked subsidy provide करेंगे, and approximately we will benefit around your 2 lakh enterprises, and we will help them to marketing, we will help them in increasing their production, we will help them in increasing their production, their product quality, marketing and branding by 2 schemes. And what are the 2 schemes? कौन से schemes के through इसको promote किया जा रहा है? Credit link subsidy, and the second one is one district one product. Okay, what is one district one product? It is again a government scheme in which
द डिस्ट्रिक्ट विच इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच पर्टिकुलर प्रोड्यूस, किसी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस के लिए जो कोई डिस्ट्रिक्ट आपकी फेमस है उसमें उसका प्रमोशन करना है, प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना है, एंड दैट हेल्प्स इन फर्दर मार्केटिंग एज वेल, उसकी मार्केटिंग में भी हेल्प करना है, हमें उसको प्रमोट करना है, दैट विल कम अंडर ऑल्सो योर वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट इन दिस एज आई हैव टोल्ड यू, ये थोड़ा सा डाटा है पीएलआई स्कीम का कि इसके अंदर आपके कितने बेनिफिशरीज है। मैक्सिमम बेनिफिशरीज वर योर एमएसएमईज विद 70 एमएसएमईज डायरेक्टली एनरोल्ड एंड 40 अदर आर कॉन्ट्रैक्टिंग थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। ओके, next it provide financial initiatives. Under this scheme the government is providing initiative to promote your Indian food brands abroad। ठीक है, अगर कोई abroad में अपनी Indian food brands को आपका प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है, देन ऑल्सो द गवर्नमेंट विल गिव देम फाइनेंशियल इनिशिएटिव एज वेल। एंड व्हेन दिस इनिशिएटिव वाज गिवन, आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव जितना भी आपको इनिशिएटिव मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है उसमें से आपका 50% is for the branding and marketing के लिए in abroad। okay, and if the production is your 3% of annual food product sale, कि आपने इतना सेल किया है which is 3% और 50 करोड़, जो कम होगा उसी के बेसिस पर आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। ओके, and currently how many beneficiaries are under this scheme? There are 73 beneficiaries under this component of PLI scheme। ठीक है, ये formalization जो है आपका, this is your component of PLI scheme। okay, so what are the recent developments कि recently क्या development हो रहे हैं इस particular scheme में? So recently in March this Ministry of Food Processing Industries have established 100 new NABL accredited food testing laboratories। इतनी laboratories को establish किया गया है, and just wait, okay, and they have also launched the World Food India program। This is in a webinar which was held in September 1922 and this was its थर्ड एडिशन। ये क्या था, इसका थर्ड एडिशन था, एंड वी वांट टू मेक इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, हम इसको किस पे काम कर रहे हैं, वी वांट टू मेक इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम, एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन 2017 टू शोकेस इंडियाज culinary initiatives। ओके, एंड ट्रेडिशन, फूड ट्रेडिशंस एंड culinary टेस्ट को वर्ल्ड के सामने रखने के लिए ये जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था इन 2017, एंड वी वांट टू मेक दिस प्रोग्राम द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग इवेंट। ओके, एंड रिसेंटली दिस वाज हेल्ड इन फ्रॉम September 19 to 22 इन न्यू दिल्ली। ओके, यस एवरीवन, क्लियर? till now, so the next scheme is your Kisan E-Mitra and IoT enabled systems to improve crop productivity। अब हमारे यहाँ क्या है, प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है इंडिया में, है ना, प्रोडक्शन इज वेरी हाई बट प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस। ठीक है, पर यूनिट एरिया जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट क्वांटिटी इज वेरी लेस। सो वी वांट टू इंप्रूव दिस प्रोडक्टिविटी एज वेल। हमें प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करनी है, सिर्फ प्रोडक्शन इंप्रूव करने से काम थोड़ी ना चलेगा। वी हैव टू लुक अपॉन आर बायोडाइवर्सिटी एज वेल, वी हैव टू लुक अपॉन आर सॉइल हेल्थ एज वेल। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फॉर दैट गवर्नमेंट हैव लॉन्च फर्दर स्कीम्स, एंड द फर्स्ट वन इज योर किसान ई मित्रा, एंड दिस वॉज योर PYQ एज वेल। इसी ईयर आपका पूछा गया था 2024 में ही आपका नाबार्ड एग्जाम में अबाउट दिस किसान ई मित्रा कि ये क्या है। सो किसान ई मित्रा ये एक आपका AI पावर्ड चैटबॉट है विच हेल्प्स द फार्मर टू रिजॉल्व देयर क्वेरीज अबाउट द PM किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, फार्मर्स को ये असिस्ट करता है रिगार्डिंग दिस, उनकी क्वेरीज हो या कोई कंप्लेन हो रिगार्डिंग दिस PM किसान सम्मान निधि स्कीम। ओके, एंड दिस वर्क्स इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? 11 रीजनल लैंग्वेजेस, एंड ओवर 20,000 फार्मर्स क्वेरी आर डेली tackled by this। I have answered this question a lot of time, like 6 months तो are very essential। ठीक है, 6 मंथ के बहुत ज़रूरी हैं फ्रॉम जनवरी, एंड इफ़ यू कांट डू फ्रॉम जनवरी February, अगर नहीं किए हैं तो डू ओनली द इम्पॉर्टेंट वन फ्रॉम दोज मंथ, एंड अप्रैल से कॉन्टिन्यूसली पढ़ना शुरू कर दो। डोंट मिस इवन अ सिंगल ऑफ करंट अफेयर।
related to your agriculture sector, rural development sector and the other ministries which I told you lot of time, ठीक है, तो वहां से मिस नहीं करना है, अंडरस्टूड। और जब से हमने फरवरी से आपके करंट अफेयर एग्रीकल्चर वाले लेने शुरू किए हैं, तब से आप कीजिए, मोस्ट ऑफ द टॉपिक विल बी कवर्ड फ्रॉम देयर, ओके, क्योंकि नाबार्ड से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, so we have discussed this Kisan E-Mitra. The next one is your yes, you can do it from the month from when budget was released. Okay, फैब से कर लीजिए आप। फैब के करंट अफेयर तो डिस्कस किए ही हैं, फैब के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, एग्री के मार्च के किए हैं, ओके, एंड बी कंटिन्यू विद दैट, रेगुलर रही है अभी बहुत सारी, बिकॉज द मोस्ट ऑफ थिंग्स आर गेट रिपीटेड। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रोज ही एक स्कीम लॉन्च कर रही है, एवरीथिंग गॉट्स रिपीटेड, वो किसी चीज में कुछ अपडेट्स होते हैं, सो यू हैव टू लर्न दैट। ज्यादा स्टैटिक में जाना है नहीं, क्योंकि नाबार्ड पूछता नहीं है वहां से ना। चलो अभी इस पे देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज योर किसान ई मित्रा, द सेकंड वन इज योर नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। दिस इज योर ऑटो AI enabled system in which there are approximately the information about 61 crop। इस जो ये नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, दिस इज AI enabled system and this is having a information of 61 crop। इसमें 61 crop की आपकी इंफॉर्मेशन है, विच टेल्स अस अबाउट ओवर 400 पेस्ट, कि इन 61 क्रॉप्स को ये 400 पेस्ट जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इनकी इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में है। नाउ वी आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स, अब हमारे पास एक्सटेंशन वर्कर्स है। नाउ व्हेन द एक्सटेंशन वर्कर विजिट टू द फार्मर्स फील्ड, और फार्मर उनको दिखाते हैं कि भाई देखिए मेरी फील्ड में ये पेस्ट है, मेरी पूरी फील्ड इसकी वजह से खराब हो गई। सो दे विल पुट दैट डाटा, वो पेस्ट की फोटोज वगैरह लेकर के इस सिस्टम में डालते हैं, and they will get to know कि this is that pest, कि ये pest है। just take an example of pink bollworm, pick click की, they uploaded that in this system and this system will tell कि this is pink bollworm in your cotton crop, okay, and in which stage it is, कौन से stage में है, कितना और impact कर सकता है, and it will give solution to them, okay, to those extension worker it will tell solution कि these are the solution, you can use these pesticides, you can use these biological pesticide biological treatment for that, and these are your physical treatment you can do to reduce this pest attack. So this is that, understood about this national pest surveillance system, and this is again as I have told you, this is AI enabled है आपका, which is having approximately information about your 61 crop over 400 pest, and the farmer not farmer, that extension worker will take the pictures of द पेस्ट इन्फेस्टेशन, अपलोड इन दैट, एंड वो उसको सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ, ये जो आपके इस तरीके से मैं करा रही हूँ ना, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एज वेल, ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए भी है और आपकी प्रीलिम्स के लिए भी है, ठीक है। So next is your digital agriculture mission. This digital agriculture mission was launched by government in your 2024 December, ठीक है, 2024 सितंबर, नॉट दिसंबर, सितंबर 2024 में इसको आपका लॉन्च किया था विद द टोटल आउटले ऑफ 2817 करोड़, ओके, एंड दिस मिशन, in this mission we want to improve the digital public infrastructure in agriculture sector, and what are the further initiative under this? Agri stack is there, krishi decision support system is there, your comprehensive soil profile and soil fertility and profile mapping, and these are also to improve this digital agriculture ecosystem in our country. Yes, what you are saying, Sumit? These are the initiatives, and in lot of state like these schemes are more in your Punjab, Haryana and Western UP, ठीक है। यहाँ पर ये ज़्यादा स्कीम ज़्यादा है, बिकॉज गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट है, एज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो हेयर स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको कितना इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड हाउ मच दे विल प्रमोट दैट एट द रूरल लेवल एज वेल, कि वो कितना उसको रूरल लेवल तक प्रमोट करेंगे, पैक्स को कैसे वो आपका एम्पावर करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, एंड व्हेन वी हैव दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स, कि अगर मुझे अब क्वेश्चन लिखना है, लाइक देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिजिटल एम्पावरमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आई विल राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मैंने सबके बारे में लिख दिया, बट
What are the problems with this scheme? Agriculture sector में problems क्या है? Lack of awareness is there, lack of implementation is there, okay, lack of participation from the state government is there, and after that I will write in conclusion ki how what we can do to improve the implementation of these schemes. Okay Sumit? So these are the problem with that, and in few state, that's why ना agriculture sector में regional disparity बहुत ज़्यादा है. स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेंड नहीं करना चाहती है उतना मनी बिकॉज दे आर हैविंग लैक ऑफ मनी एज वेल. दिस इज अगेन अ मेजर कंस्ट्रेंट. लाइक योर स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है. ठीक है, दे डोंट वांट टू स्पेंड दैट मनी in northeast as well. So we have to make farmer aware. We have to strengthen our FPOs and PACs और FPOs जो वो रीजनल लेवल पर ही काम करती है ना आपकी, तो we have to empower them. अगर वो empower होंगी तो फार्मर के पास में अपने आप इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी. Like in states of Punjab and Haryana, the farmer are aware about that. PACs are strengthened there. As my father is a farmer and I have visualized all these things. So यहाँ से आपको पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके डिस्क्रिप्टिव में लिखना होता है. सो लुक है, नेक्स्ट इज योर एग्री स्टैक. एग्री स्टैक में अब क्या है आपका, व्हाट इज दैट, दिस एग्री स्टैक वाज मेक the farmers life easier so that they can get each and every information. उसको हर एक चीज के लिए इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, कि किस प्रोडक्ट का मार्केट में, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट वीट, कि वीट का जो मार्केट प्राइस है वो आपका कितना है. ठीक है, इन साउदर्न मार्केट इट इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप. ठीक है, कितना पिछले साल से कितना कम हुआ है, नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज होने के चांसेस है. तो फार्मर विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन दिस एग्री स्टैक, एंड थ्रू दिस एग्री स्टैक द फार्मर विल बी गिवन अ फार्मर्स आईडी. ठीक है, फार्मर्स को एक फार्मर आईडी दी जाएगी सभी फार्मर्स को इफ दे वांट टू रजिस्टर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड दिस फार्मर आईडी इज कनेक्टेड थ्रू योर आधार. ठीक है, नाउ की टारगेट्स. अब इसमें की टारगेट्स क्या है, एक एग्री स्टैक के अंदर दे वांट टू मेक अ होल डाटा ऑफ एग्रीकल्चर, बी इट प्राइसिंग, बी इट योर इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, बी इट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मर एज वेल, लैंड होल्डिंग, वो सब कुछ इस एग्री स्टैक में कन्वर्ट करना चाहते हैं. फॉर दैट दे वांट टू गिव farmers and farmer ID, so that through this farmer ID farmers can get benefit of these agriculture scheme easily. उनको easily गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल जाए. तो इसमें क्या टारगेट्स रखे थे आपके एग्री स्टैक में, दे वांट टू क्रिएट डिजिटल आइडेंटिटीज ऑफ योर 11 करोड़ फार्मर्स इन फर्स्ट 3 ईयर. ठीक है, इन फर्स्ट 3 ईयर के अंदर 11 करोड़ फार्मर्स को फार्मर आईडी देने का टारगेट रखा था. एंड लाइक दे वांट टू गिव 6 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024, 3 करोड़ in your 25 and 2 crore in your 2026. And they had also launched the digital crop survey nationwide. They want to launch this digital crop survey nationwide within 2 years. और इस डिजिटल क्रॉप सर्वे के थ्रू दे वांट टू कवर 400 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2024-25 एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री. सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना है बाय योर 2025-26. ठीक है, इस डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंदर क्या एनालाइज करना चाहते थे या क्या एनालाइज करना चाहते, दे वांट टू चेक अबाउट द सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, कितना एरिया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, कितना एरिया एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, एंड थ्रू योर GIS एंड GPS दे वांट टू कंडक्ट दिस डिजिटल क्रॉप सर्वे. ओके, एंड किस एरिया में कौन सी क्रॉप मेजरली ग्रो की जाती है, तो दे वांट टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस डिजिटल क्रॉप सर्वे. एंड टिल नाउ कितने फार्मर्स की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है, अप्रोक्सीमेटली और 4 करोड़ फार्मर्स. ठीक है, इतनी आपकी फार्मर आईडीज अभी तक जनरेट की जा चुकी है. नेक्स्ट इज योर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. अब ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है आपका, दिस एम्पावर एग्रीकल्चर विद डाटा ड्रिवन इनसाइट. ठीक है, कि व्हेन आई गो थ्रू दिस कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दिस विल हेल्प गवर्नमेंट एज वेल, गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स विच आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सो दैट देयर इज अ ब्रिजिंग ऑफ गैप, ताकि जो गैप है फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, उस गैप को ब्रिज किया जा सके थ्रू दिस कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. इसके अंदर क्या होगा, एवरी इंफॉर्मेशन, रीजनल इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होगी. एंड
it will not help only government and farmer, it will help other stakeholders, like कोई food processing industry में manufacturer है, कोई exporter है, it will help them as well कि क्या problems है agriculture sector में, किस region में कितना improvement हुआ है, कहाँ पर क्या problem है, क्या lag कर रहा है, so सारी information इसमें होगी, and through this government can take the input from here and वो अपनी पॉलिसीज में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम थ्रू विच दे विल गेट ऑल द डाटा, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मर्स, देयर प्रॉब्लम्स, सॉइल हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, अबाउट द वेदर कंडीशन एंड अबाउट द क्रॉपिंग सिस्टम. अब सारा डाटा उनके पास आ जाएगा एंड दे विल मेक स्कीम अकॉर्डिंग टू दैट, दे विल प्रमोट रीजनल प्रमोशन करेंगे वो, है ना, लाइक इन योर राजस्थान इज देयर, राजस्थान में ड्राई फार्मिंग ज्यादा है, वाटर कम है, तो दे विल प्रमोट एंड they will launch those type of scheme which are beneficial for Rajasthan. Okay, नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट टाइप की स्कीम्स को लॉन्च करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज योर soil profile mapping. In this soil profile mapping they want to check the fertility status of the soil कि कहाँ पर कितना आपका soil के अंदर कितने न्यूट्रिएंट है, कितना आपका डिप्लीशन हो चुका है न्यूट्रिएंट, एंड क्या प्रॉब्लम्स है किस रीजन की सॉइल में, कहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है, सेलाइन सॉइल की प्रॉब्लम कहाँ है, एसिडिक सॉइल की प्रॉब्लम कहाँ है, नाइट्रोजन कौन सी सॉइल में कम है, कौन से में कम नहीं, कौन से में ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर. सो दे विल चेक ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल थ्रू दिस प्रोफाइल मैपिंग, और किस टाइप की सॉइल कहाँ पर है. ठीक है, तो दिस इज योर सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, एंड थ्रू दिस सॉइल प्रोफाइल मैपिंग दे वांट टू मैप अप्रोक्सीमेटली 142 मिलियन हेक्टेयर लैंड को ये मैप करना चाहते हैं विद जिसमें से 29 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है टिल नाउ अभी तक आपकी मैप की जा चुकी है. ओके, एंड फॉर दिस दे विल हैव अ डिजिटल, दिस इज एन अंडर योर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एंड डिजिटल जर्नल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे. डिजिटल जर्नल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे क्या है कि लाइक योर गवर्नमेंट रिलीजेस एमएसपी फॉर योर खरीफ एंड रबी क्रॉप, इनके लिए आपका क्या करती है, रिलीज करती है एवरी ईयर एमएसपी. सो हाउ डू दे गेट द डाटा अबाउट द प्रोडक्शन कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, उनको वो डाटा कहाँ से मिलता है. टिल नाउ स्टेट गवर्नमेंट से जो इनपुट्स मिलते थे वहाँ से, बट नाउ दे हैव लॉन्च दिस डिजिटल जर्नल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे. नाउ दे विल डिजिटली एनालाइज द डाटा ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट थ्रू GIS, और वो जो आपके GIS GPS है उसके थ्रू उनको पता लग जाएगा कि भाई एक यहाँ इस स्टेट में लाइक इन हरियाणा अप्रोक्सीमेटली 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर अंडर वीट के अंदर 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड है. ठीक है, अब मान लीजिए जस्ट फ्रॉम 1 हेक्टेयर दे विल गेट 100 क्विंटल ऑफ वीट, कि 1 हेक्टेयर से 100 क्विंटल ऑफ वीट मिला है, और हरियाणा में 50 हेक्टेयर लैंड जो है वो वीट के अंडर है. सो थ्रू दिस कैलकुलेशन दे विल डिजिटली गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्शन कि उस स्टेट से इस रबी सीजन में कितना प्रोडक्शन हो सकता है. ओके, सो दिस इज योर दैट, एंड थ्रू दिस दे वांट to create the direct and indirect employment, and they are providing to what I can say, train local youth and SHG female members, and they had set a target ki through these particular initiative, through these digital initiative in agriculture sector, we will train approximately 2.5 lakh local youth and krishi sakhis. ठीक है, next this seaweed, like now the question can be asked through this seaweed as well, because government is promoting this seaweed for the export market. बहुत काम कर रही है इसके promotion पे for the southern state and coastal states, and there are lot of new initiative through this. अब seaweed क्या है actually, अभी नाबार्ड में क्वेश्चन भी आया था आपका ना, एक्वेटिक वीड पे क्वेश्चन था. सो seaweeds जो है they are nutritional packed फूड विच आर ग्रोन इन योर मेराइन वाटर, है ना, खारे पानी में आपकी ग्रो करती है, एंड देर इज द डिमांड ऑफ दीज सीड्स आर मेजर इन योर इंटरनेशनल मार्केट, एंड स्टिल दीज सीवीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो हम ये पैकेज प्रोडक्ट खाते हैं ना, लाइक योर आइसक्रीम्स आर देयर, योर जेलीज आर देयर. तो हम ये जो आपका लेते हैं ये प्रोडक्ट्स, इन सभी में सीवीड ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स आपके मिले हुए होते हैं. लाइक वी यूज ईट आइसक्रीम, जो मार्केट से आप कभी आइसक्रीम लेकर आओ, सो इट लुक्स वेरी
बहुत फ्रोथी एंड फ्लफी वो होती है, और अगर वो मेल्ट डाउन हो जाए, ठीक है, मेल्ट हो गई, आपने उसको फ्रिज में वापस से रख दिया कि वापस से ये आपका शेप गेन कर लेगी, एंड वी विल ईट दैट, एंड व्हेन यू विल टेक आउट दैट आइसक्रीम फ्रॉम देयर ना, यू विल फाइंड आउट कि आपका वो टेक्सचर नहीं है, वो फ्रोथीनेस नहीं है, वो फ्लफीनेस नहीं है उसमें, बिकॉज जो इमल्सिफिकेशन था एंड बाय एडिशन ऑफ दीज अगार जेल एंड एल्जीनेट ऐड करने के बाद जो फ्रोथीनेस था, जो उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो सारी जा चुकी है, ठीक है। तो दिस इज वाई टू मेक द टेक्सचर ऑफ दीज फूड प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल। अब आइसक्रीम मार्केट है आपका, जेली मार्केट है, दीज आर वेरी एसेंशियल, सो वी हैव टू प्रमोट दिस, एंड एज द मार्केट in international is very high for this, demand बहुत ज़्यादा high है, so that's why government is promoting this seaweed production in your coastal states। तो उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीवीड के कल्टीवेशन के लिए ना लैंड की जरूरत है, ना फ्रेश वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, किसी चीज की जरूरत नहीं है, दे कैन इजीली बी ग्रोन इन योर सलाइन वाटर, जो आपका कोस्टल एरिया के रीजन है। दिस इज अगेन अ बूमिंग इंडस्ट्री है, एंड गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द सीवीड कल्टीवेशन थ्रू योर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एंड टिल नाउ दे वांट टू बूस्ट द सीवीड प्रोडक्शन टू 1.12 मिलियन टन इन 5 ईयर। इतना प्रोडक्शन वो इंक्रीज करना चाहते हैं बाय दिस 5 ईयर। ओके, नेक्स्ट, अब व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स हैं विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम योर सीवीड। सो वन इज योर एल्जीनेट, 3 प्रोडक्ट्स ड्राइव होते हैं सीवीड से, एल्जीनेट, अगार एंड काराग्रीन। दिस एल्जीनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम योर ब्राउन सीवीड, ठीक है, ये आपके स्टैटिक में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि दिस alginate is derived from which type of seaweed? So alginate is derived from your brown seaweed and it is used in food and medicine, ठीक है, मेडिसिन एंड फूड में यूज होता है। नेक्स्ट इज योर अगार जेल। अगार जेल की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जितने भी आप जेली लाइक प्रोडक्ट्स खाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे टॉफी हो, चाहे चॉकलेट्स हो आपकी, चाहे योर डिजर्ट हो, एनीथिंग इज देयर, इन एवरीथिंग अगार इज यूज्ड। इट्स अ योर जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर रेड सीवीड से ये यूज किया जाता है। और आपने जो लाइक योर डीएनए बायोटेक वगैरह के बारे में आपने सुना हो, तो व्हेन दे डू द डीएनए एक्सट्रैक्शन, जब वो यूज करते हैं उसमें डीएनए को चेक करते हैं, एट दैट टाइम अगार जेल इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। तो लैब में भी इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज योर carrageenan. This carrageenan is extracted from again red seaweed and this is generally used in your dairy and processed food, जो मैं आपको बता रही थी आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। नेक्स्ट, अब इसकी जो डिमांड है सबसे ज्यादा कहां पर है, जापान, चाइना, साउथ कोरिया आर इट्स बिगेस्ट कंज्यूमर, ओके, एंड दिस ग्लोबल सीवीड इंडस्ट्री including food industry and extracted valued at approximately 5.6 billion US dollar। इतनी बड़ी ये मार्केट है आपकी। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 10 इमर्जिंग सीवीड मार्केट्स जो है, अगर अभी आपने इसमें इमर्ज कर लिया, काम कर लिया, देन दिस कैन ग्रो अप टू 11.8 बिलियन बाय 2030, ठीक है, ये आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। नेक्स्ट, what are the schemes which are promoting this seaweed cultivation in India? So first one is your, एक छोटे से पॉइंट देखते हैं, currently there are 844 species of seaweed out of which only 60 are commercially valuable, जिनको हम यूज कर सकते हैं for commercial production, okay, and along with the government, National Fishery Development Board is working to boost this sector for infrastructure support and policy support. Next, from June 2020 under this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, this is having a complete investment of 20,050 crore to boost this फिशरी सेक्टर। और सीवीड फार्मिंग जो है एक कंपोनेंट है स्कीम का। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीवीड फार्मिंग इज कंपोनेंट अंडर विच पर्टिकुलर स्कीम। सो दैट इज योर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, टोटल बजट जो अलोकेटेड है दैट इज योर 640 करोड़ फॉर दिस सीवीड कल्टीवेशन फ्रॉम 2020 टू 2025। मीन्स लुक, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इट्स हैव अ टोटल अलोकेशन ऑफ योर 2,150 करोड़, एंड द सीवीड फार्मिंग
इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस, और इसमें से जो है आपका इसको कितना रुपए अलोकेटेड है, 640 करोड़. ओके, and out of this 640 crore rupees for this seaweed cultivation, rupees 194 crore are used for infrastructure development, and for this they have set up मल्टीपर्पज सीवीड पार्क इन तमिलनाडु. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया इन्होंने. 194.9 करोड़ रुपीज जो है दे हैव एस्टेब्लिश्ड फॉर, दे हैव यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग प्रोजेक्ट, एंड आउट ऑफ दिस मल्टीपर्पज सीवीड पार्क जो है एस्टेब्लिश किया गया कहां पर, तमिलनाडु में. एंड अ सीवीड ब्रूड बैंक इज एस्टेब्लिश्ड इन दमन एंड दीव. Okay, these are the two important incentives. And we want, और इंडिया ने क्या टारगेट रखा है, इंडिया हैड सेट द टारगेट टू बूस्ट द सीवीड प्रोडक्शन ऑफ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू 1.12 मिलियन इन नेक्स्ट 5 years. ओके, नेक्स्ट, climate resilient coastal fisherman village program. Under this the government is promoting climate resilient coastal villages. अब जो coastal villages हैं generally they are in danger through this climate change, है ना, susceptible है, वो बहुत ज़्यादा impact हो सकता है, like flood is there, cyclone is there, तो mostly your this comes under Ministry of Fishery. ठीक है, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है, दैट वाज अ कंपोनेंट ऑफ दैट एज वेल. सो लुक हियर नाउ, क्लाइमेट रिजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज प्रोग्राम. सो दिस इज फॉर द विलेजेस विच आर सस्पेक्टेबल टू योर क्लाइमेट चेंज, स्पेसिफिकली और कोस्टल स्टेट. जैसे सी लेवल राइज हो रहा है तो वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस हैं, डूब जाएंगी वो विलेजेस जो हैं, फिशरमैन को इम्पैक्ट होगा, लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी. सो दे वांट टू इम्प्रूव योर दिस coastal villages, so they are developing and improving the infrastructure of कितनी villages को कर रहे हैं, 100 coastal villages. ठीक है, which in your different state and UTs of all the states, coastal states, 100 villages को they will 100 coastal villages will be developed as a climate resilient coastal fisherman villages, and Karnataka will be developed as climate resilient coastal fisherman villages. ठीक है, सो देखिए एक छोटी सी स्कीम है, बस आपको ये नंबर याद रखना है कि कितनी विलेजेस को अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कितनी विलेजेस को क्लाइमेट रिजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेज बनाया जाएगा. तो दैट इज योर 100. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये आप पढ़ लीजिएगा. प्रोवाइड फूड एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ हो फिशरी सेक्टर की, फिशरमैन को सही एम्पावरमेंट, फिशरमैन की लाइवलीहुड इंप्रूव की जा सके. ठीक है, लोकली आपकी अवेलेबल हो फिशरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके. तो दीज आर द सुमित, दीज विल बी अवेलेबल इन द पेड कोर्स. ये जो पेड कोर्स है उसके करंट अफेयर में आपको PDF मिलेगी. ठीक है, करंट अफेयर सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके करंट अफेयर सेक्शन में इफ़ यू हैव परचेज अ कोर्स तो वहाँ पे एग्रीकल्चर की PDF आपको मिल जाएंगी करंट अफेयर में. ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज योर फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. दिस इज एन ओल्ड स्कीम, बस थोड़ा सा कुछ इसमें लाइक दे हैव गिवन द राइट अप कि कितना इसमें इंप्रूव किया है. सो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फंड, दिस वाज क्रिएटेड बाय दिस मिनिस्ट्री इन योर 2018 and 19. And this fund has a total size of 7,522.48 crore. Okay, and कौन कौन इसमें से बेनिफिट ले सकता है, व्हाट आर द एलिजिबल एंटिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर फंड, दैट इज योर स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एंड योर स्टेट एंटिटीज. व्हाई दिस फंड वाज क्रिएटेड, दिस फंड वाज क्रिएटेड टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन योर फिशरीज. ठीक है, फिशरीज जैसे आपका एग्रीकल्चर उसमें है ना, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपका फंड, तो सिमिलरली लाइक दिस फंड वाज क्रिएटेड टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर in your fishery sector. And who are eligible to get the incentive and the loan from this scheme? State government, UTs and other state entities. Okay, this fund will promote your infrastructure facilities by the Department of Fishery under Government of India, and under this scheme they will provide a interest subvention up to 3% per annum. इतना आपका interest subvention मिलेगा. and I was not discussing this scheme in much detail क्योंकि ये scheme मैं पहले discuss कर चुकी हूँ. okay, and
other nodal eligible entities are ordered that they have to provide the interest rate up to 5%, not lower than, इससे कम नहीं देना per annum, ठीक है. This scheme I have also discussed, this Rashtriya Gokul Mission. So in this Rashtriya Gokul Mission, they want, and this is very old scheme, to improve your infrastructure and indigenous cattle. Last lecture mein I have discussed ki what are new initiative under this particular scheme. So they are improving the semen station, जहाँ पर आपका bovine जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो सीमन वहां पर अवेलेबल हो पाएंगे. सो दे हैव एस्टेब्लिश्ड 47 सीमन सेंटर थ्रू द कंट्री. Okay, and they have improved the production facilities. They have improved the semen production facilities throughout the country, and for the production of only female cow. ठीक है, जो सीमन सैंपल्स भी जो बनाए गए हैं, if they were incorporated in the female, that they will produce your only the female population. कि जो बर्थ होगा that will be of female cows up to 90% accuracy. This type of a semens were created कि जो बुल है उसकी वैल्यू नहीं है ना. And even the not in meat processing industry में भी नहीं है because of the Hindu religion and religious beliefs की वजह से, and फीमेल की जो है डिमांड ज़्यादा है, तो दे हैव क्रिएटेड दिस सीमन प्रोडक्शन. एंड दिस सीमन वाज दिस सेक्स सॉर्टेड सीमन. इस सेक्स सॉर्टेड सीमन किस चीज़ को बोलते हैं कि जहाँ से आपका इंश्योरिटी हो, जहाँ श्योरिटी हो कि देयर विल बी द बर्थ ऑफ फीमेल ओनली. ओके, दैट वाज अप टू 90% एक्यूरेसी. एंड दीज सेक्स सॉर्टेड सीमन सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड इन 5 स्टेट्स. 5 स्टेट्स में इनको एस्टेब्लिश किया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश. ओके, एंड टिल नाउ 58.6 lakh doses of sex sorted semen have been produced by these centers. इतने सीमन्स जो है सैंपल इन्होंने अभी तक प्रोड्यूस कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट IVF labs are also established. ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए. एंड टिल नाउ 22 IVF, 22 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरीज आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री, एंड दे वर गिवन एन इंसेंटिव अश्योर्ड प्रेगनेंसी पर. ठीक है, थ्रू दीज IVF, जैसे ह्यूमन बीइंग में IVF होता था ना, सिमिलरली वैसे ही अब आपका एनिमल्स के अंदर भी IVF को शुरू किया है, जिसके लिए आपकी 22 IVF लेबोरेटरीज थ्रू आउट द कंट्री एस्टेब्लिश की गई है. एंड थ्रू दिस दे विल गिव एन इंसेंटिव ऑफ 5,000 रुपीज पर एश्योर्ड प्रेगनेंसी. ठीक है, जो इंसेंटिव दिया जा रहा था 21,000 पर एश्योर्ड प्रेगनेंसी इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर. ठीक है, इतना इंसेंटिव आपको दिया जाएगा टू एनकरेज द IVF अंडर दिस IVF इन एनिमल्स. ठीक है, IVF को प्रमोट करने के लिए हर एक एश्योर्ड प्रेगनेंसी में इंसेंटिव ऑफ 5,000 रुपीज पर एश्योर्ड प्रेगनेंसी आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 20,000. ठीक है, इतना जो है इंडिजीनस ब्रीड के लिए दिया जाएगा कि अगर आप इंडिजीनस ब्रीड्स को प्रमोट कर रहे हो, ये नहीं कि आप फॉरेन ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड्स को प्रमोट कर रहे हो. दीज आर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो था, दैट इज फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडिजीनस ब्रीड. एक्सोटिक ब्रीड नहीं है. अगर क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट में एक्सोटिक और इंडिजीनस ब्रीड दोनों दे दिया और आपने सारा पढ़ा है, एंड समटाइम्स स्टूडेंट मार्क बोथ कि भाई कैटल को प्रमोट करने के लिए, नो, इंडिजीनस ब्रीड जो हमारी इंडिया की लोकल ब्रीड्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, एक्सोटिक ब्रीड्स को नहीं प्रमोट करना है. ठीक है, तो दिस राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज फॉर दैट. नाउ दे विल ट्रेन योर मैथ्रीज जो डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे फॉर द लॉट ऑफ like for semen, for vaccination. So these people were trained to provide the doorstep deliveries to the farmer for your vaccination, for your semens, for your IVF, for medicines. So how many will be trained? 38,736 mathris will be trained for that. Now Gokul Gram, till now government have established 16 Gokul Grams in India, and this scheme is discontinued now. ठीक है, 25 तक इसका जो सनसेट क्लोज था वो हो गया, एंड दिस इज डिसकंटिन्यूड नाउ. और अभी तक इसके अंडर कितने गोकुल ग्राम एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं? योर 16 गोकुल ग्राम्स. ओके, एंड दे हैव एस्टेब्लिश नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किए हैं. दे हैव एस्टेब्लिश 2 ब्रीडिंग सेंटर, 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, one for the northern sector and one for the southern state. So the one which is in northern, for the north, जो नॉर्थ के लिए है, द नॉर्दर्न रीजन नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन योर
कीरतपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, कहां पर एस्टेब्लिश किया है, कीरतपुर मध्य प्रदेश. एंड द साउदर्न रीजनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड इन योर निलोड आंध्र प्रदेश. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम. ओके, सो ये हो गया द नेक्स्ट एंड लास्ट. ठीक है, ये अचीवमेंट्स आप पढ़ लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. सो चलो एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको. थ्रू दिस राष्ट्रीय गोकुल मिशन, the milk production, a significant increase in milk production up to 63.5% increase in the past decade. ठीक है, and this risen from 146.31 million ton in 2014. कितना इंक्रीज हुआ है, 2014 में जो मिल्क प्रोडक्शन था that was 146.31 and increased to 239.3 million ton by year 2023. तो कितना इंक्रीज हुआ है 2014 से आपका 2023 तक, increased from 63.5%. Okay, and during this productivity, during this period, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जब से लॉन्च किया है तब से प्रोडक्टिविटी जो है इन ऑल एनिमल कैटेगरीज इज increased, be it your descript animal and be it your non descript animal. Okay, and buffalo and crossbreed as well. और कितना इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोडक्टिविटी एनिमल्स का, 26.3%. Okay, in your this buffalo crossbreed cattle, while indigenous and non-descriptive cattle saw a 39.37% increase, with the productivity rising from 927 kg per animal in 2014 to 1292 kg in 2023. इतना जो है प्रोडक्टिविटी एनिमल्स का आपका इंक्रीज हुआ है. एंड ड्यूरिंग द सेम प्रोडक्शन सेम पीरियड मिल्क प्रोडक्शन जो है इंडिजीनस कैटल से इंक्रीज हुआ है आपका 69.27. ओके, विच वॉज ग्रोन फ्रॉम 2948 टू 49.90 मिलियन टन. ये काउ का है आपका. एंड बफलो मिल्क प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज बाय 39.73. ठीक है, कैटल का जो है इंक्रीज बाय 69.27 एंड बफलो 39.73. ओके, एडिशनली जो मिल्किंग एनिमल्स है, मिल्किंग एनिमल्स की पॉपुलेशन भी आपकी राइज की है 30.46%. ओके, नाउ द ICAR-CTCRI डेवलप्स ऑरेंज फ्लैश, जो सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, they have developed a orange flesh sweet potato. उन्होंने एक ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो डिस्कवर किया है जिसका नाम रखा है SP95/4. ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. They will give you the name of this in the question and they will ask you कि this is a breed or variety of which crop. So this is a variety of crop of your sweet potato which was recently developed by your Central Tuber Crop Research Institute to deal with the food security in Kerala. Okay, in tribal population. ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन में डील करने के लिए. एंड दिस इज पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं. दैट्स व्हाई दिस वाज लॉन्च्ड एंड it was successfully tried in your tribal areas of states उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड केरला. इनके अंदर इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है. ओके, सो वेराइटी का नाम क्या है, SP95/4. अब दिस वाज लास्ट वन अबाउट द मैंग्रोव कल्टीवेशन. मैंग्रोव कल्टीवेशन से भी आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस वाज द रीसेंट डाटा विच वाज रिलीज बाय द गवर्नमेंट. जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, let's move on. So mangrove क्या है, basically it grows in your coastal areas and it is your salt tolerant plant community which is grown in your tropical and subtropical region. ठीक है, coastal area में है and it conserves our coastal areas from the high effect of your cyclone, है ना, cyclone वगैरह से बचाता है. and आपका ये What I was saying, कोस्टल एरिया में ग्रो होता है, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, सॉल्ट का इंपैक्ट नहीं पड़ता इस पे. इसकी जो रूट्स हैं दे आर नोमेटोफोर, वो बाहर की तरफ ग्रो करती हैं. ओके, सो दैट दे कैन हैव द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर, क्योंकि आपका वाटर स्टेगनेंट कंडीशन में तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है. सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नोमेटोफोर जो रूट्स है वो कहाँ किस में मिलती हैं. दे आर फाउंड इन योर मैंग्रोव बिकॉज दे वांट दे रेस्पायर. जैसे ये आपका मैंग्रोव ट्री है ना, जस्ट टू गेट, ये आपका मैंग्रोव ट्री है. ओके, ठीक है, सो देयर रूट विल ग्रो आउटसाइड. जैसे ये नीचे आपका वाटर स्टेग्नेशन है, दे विल ग्रो देयर एंड दे विल रेस्पायर फ्रॉम हियर.
ओके और अब ये जो आपके मैंग्रोव ट्रीज हैं दे जनरली फाउंड इन योर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन रेंजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 26 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. These mangrove species are adapted to survive in waterlogged soil. इजिली ये वाटरलॉग्ड सॉइल में ग्रो कर सकती हैं, हाई सेलाइन रीजन में एंड टाइडल रीजन में, एंड दे आर द शॉक एब्जॉर्बर एंड हैविंग हाईएस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेट. सबसे ज्यादा कार्बन एब्जॉर्प्शन का रेट है एंड दे आर शॉक एब्जॉर्बर फ्रॉम द योर ओशियंस. ओशियन से जो भी आपका फ्लड साइक्लोन के जो इम्पैक्ट रहते हैं दे विल एब्जॉर्ब ऑल द शॉक है ना एंड दे विल प्रिवेंट द कोस्टल एरियाज. नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा देखते हैं जो अभी रिसेंटली आपकी जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये कब 2023 नाम देख के ना कंफ्यूज मत हो जाना, ये अभी दिसंबर 2024 के अंदर आपकी आई थी. ठीक है, एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट इसी साल आई है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दिस इज बायनियल रिपोर्ट, 2 साल में वंस इन 2 ईयर में ये रिलीज करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम देखते हैं करंटली मैंग्रोव एरिया इज कवर्ड इन योर 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट है एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.15% ऑफ नेशनल जोग्राफिकल एरिया. तो जो हमारा कंट्री कंप्लीट जोग्राफिकल एरिया है उसके 0.15% एरिया में क्या है आपके मैंग्रोव ट्रीज है. There has been an increase of 7.86%. मैंग्रोव जो एरिया है कितना इंक्रीज हुआ है 7.86% इंक्रीज हुआ है एंड द नेट इंक्रीज ऑफ इन टर्म्स ऑफ एरिया 509.68 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम द 2013. अगर मैं 2013 से कंपेयर करूं तो दिस मच एरिया वाज इंक्रीज्ड. एंड Which state is having the largest mangrove cover? West Bengal. सबसे ज्यादा जो है मैंग्रोव में है जो that is your 42.45% after West Bengal. सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव कवर है that is in your Gujarat and after that Gujarat, Andaman and Nicobar. ठीक है, these are the 3 states which is having the highest mangrove cover. एंड गुजरात में सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है दैट इज इन योर गुजरात अप्रोक्सीमेटली 253.06 किलोमीटर एरिया जो है इंक्रीज हुआ है फ्रॉम ईयर 2001 टू 2023 एंड दिस इज बाय द हेल्प ऑफ योर लार्ज स्केल प्लांटेशन किया गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से ही गुजरात में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवरेज जो है इंप्रूव हुआ है. ओके नेक्स्ट, अब इसके लिए मेजर्स क्या लिए गए हैं, किस तरीके से हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट को इंप्रूव किया, बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल फॉर आर बायोडाइवर्सिटी एंड फॉर एनवायरमेंट एज वेल. सो दे हैव लॉन्च द प्रोग्राम मिष्टी. में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. मिष्टी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मैंग्रोव की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एंड दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स. दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन योर 5 जून 2023 टू प्रमोट रिस्टोरेशन एंड एफोरेस्ट्रेशन ऑफ मैंग्रोव्स. ठीक है, रिस्टोर करना चाहते थे वो इसको मैंग्रोव एरियाज को एंड एफोरेस्ट्रेशन कि जहां पर आपका खत्म हो गया है वहां पे भी हम एफोरेस्ट्रेशन करेंगे. एंड वन मोर थिंग इज हेयर, कितने एरिया को अक्रॉस 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 4 यूटीज. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस्ट्री प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटी. सो नो, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल एंड स्टेट एंड यूटी, इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 4 यूटीज. ओके, एंड द फंडिंग इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो फंडिंग है दिस विल कम फ्रॉम योर कैंप का फंड. जो नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन एंड फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी जो है वहां से इसका सारा फंड आएगा. ये कैंप का फंड क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बीट प्राइवेट एंड योर गवर्नमेंट इफ दे कट फॉरेस्ट, अगर वो फॉरेस्ट को कट करते हैं तो दे हैव गिव द मनी कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की वैल्यूएशन कितनी थी उसके बेसिस पर उनको इसमें मनी ट्रांसफर करना होता है. आउट ऑफ दिस 10% मनी वॉज केप्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 90% विल बी ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट को ये जो मनी है उसको यूज करना होता है फॉर फॉरेस्ट अफोरेस्ट्रेशन एंड रिस्टोरेशन. ओके,
सो इसकी जो सारी फंडिंग है ये यहाँ से आएगी. एंड फ्रॉम द ईयर 2024-25 17.96 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 3,836 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट. इतने हेक्टेयर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो खराब हो चुके हैं उसकी रिस्टोरेशन के लिए 17.96 करोड़ रुपीज वॉज एलोकेटेड टू आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी. ठीक है. नेक्स्ट is your National Coastal Mission Conservation for Mangrove and your Coral Reef. इनकी restoration के लिए है and they will be given the assistant, financial assistant for conservation of your 38 mangrove sites की restoration के लिए and 4 coral reef sites के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आपकी मनी प्रोवाइड की जाएगी. ओके. एंड अंडर दिस द शेयर विल बी 60-40 कि सेंटर का शेयर होगा 60 एंड स्टेट का शेयर होगा आपका 40. एंड 8.58 करोड़ रुपीज हैज बीन रिलीज फॉर 7 कोस्टल स्टेट. ठीक है. 7 कोस्टल स्टेट्स के लिए इसको रिलीज किया जा चुका है. नेक्स्ट देयर इज एन अनदर स्कीम ग्रीन GCF ECRIIC project, that is Green Climate Fund for Enhancing Coastal Resilience of Indian Coastal Community. ठीक है. ये आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड के थ्रू इसकी फंडिंग होती है एंड दिस वाज एक्टिव सिंस 2019. और ये कौन से स्टेट्स में काम कर रहा है ये पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा. एंड दे हैव एन एम टू रीस्टोर 10,575 हेक्टेयर ऑफ ए मैंग्रोव. इन 3 स्टेट में इतने मैंग्रोव्स को रिस्टोर करने का टारगेट है एंड टिल नाउ 3,114 hectare land is restored successfully. ठीक है. So what are the benefit of your mangrove? As I have told you, they have the largest carbon sequestration capacity. सबसे ज़्यादा कार्बन को ये absorb कर सकते हैं. Shock absorber है. ठीक है. इफ दे आर लॉस्ट, अगर मैंग्रोव ट्रीज खत्म हो जाते हैं तो देयर विल बी इंक्रीज इन 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज. कि इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हमारी इंक्रीज हो जाएगी एंड दे हैव लॉक्ड अप्रॉक्सीमेटली 87% ऑफ द कार्बन इन देम. ठीक है. इतना उन्होंने कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रखा है जो थ्रू आउट द कंट्री है. एंड दे कैन रिस्टोरिंग जस्ट इफ वी विल रिस्टोर अराउंड 1.6 मिलियन एकड़ ऑफ लॉस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट that can capture more carbon as well. वो अपने अंदर और कार्बन को स्टोर कर सकते हैं. तो it will increase our capacity of carbon sequestration. ठीक है. and these are, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर नहीं है. ठीक है. ये काट दीजिएगा. this is wrong here. ये कुछ दूसरी स्कीम. so this is all about for the current affair of this particular last week. और इस वीक के जो है हम नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे. everyone, if you have any doubt or any question you can ask me. Or else I'll end this session. And be regular with the agriculture current affairs if you are targeting NABARD and other agriculture exams. Yes, if you have any doubt, you can ask. I'll wait for your response for a few minutes. चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.